from the scratch till the time you get your PPL, till the time you get your CPL. हेलो बोजो ओला सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नितेश अग्रवाल. आई एम स्टूडेंट पायलट, आई एम एन एस्पायरिंग पायलट एंड आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है. There are a lot of people in this entire world who have a dream that they want to follow through. They have a career in mind that they want to pursue, and one of those dreams out of all the options available is to become a pilot. Now, for the people who, due to commitment issues or limited capacities, are not able to pursue this as a career of becoming a pilot, nobody's gonna judge you because nobody has a freaking right to judge you. It's your life, it's your dream. You can do whatever the fuck you want. But for the people who have been thinking of or are recently thinking of joining this beautiful and wonderful industry of aviation and to become a pilot, तुम्हारा भाई किस लिए तुम्हें सब कुछ बताऊंगा मैं from the scratch till the time you get your PPL, till the time you get your CPL. But right now this video is only about from the scratch to your PPL. Right now I'm sitting in the cockpit of a Cessna 172 and I'm sitting here because, you know, for the vibes, for the aesthetics. Guys, before heading forward, it's a very small disclaimer that whatever I'm going to tell you about the training phase, it's only going to be about South Africa. It's not going to be related to any other country, even for India, because every country has their own training phases, and every country has their own way of training students. This video is only about South Africa. I'm going to start at the point where you guys have already arrived here at your flight school in South Africa and you're not in the deciding phase of which school should I join for my flight training. तो जब आप लोग यहाँ पे आ जाओगे तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोग करोगे वो है अपना मेडिकल देना. सो इंडिया से थोड़ा सा डिफरेंट है. इंडिया में क्या होता है, पहले आप क्लास 2 देते हो, फिर रिजल्ट का इंतजार करते हो, फिर क्लास 1 देते हो, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट का इंतजार करते हो. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप सीधा मेडिकल देने जाओगे. आधे घंटे का मेडिकल होगा. आपको हाथ क्या क्लास 1 2 3 4 सब कुछ अपने एक साथ हो जाएगा और आपको ऑफिशियल सर्टिफिकेट भी उसी टाइम पे मिल जाएगा. So you're done with your class 1 2 3 4 medicals within like maybe 2-3 days of your arrival here. And उसके बाद the second step is applying for your SPL. वो आपका आने में approximately लगेंगे 15 से 20 दिन, I would say. लोगों के 10 दिन में भी आए हैं, लोगों के 25 दिन में भी आए हैं. So that's why I'm saying on an average it will take about 15 to 20 days. आपका एसपीएल आ गए. सब आपको नेक्स्ट फेज शुरू होने वाला है आपका ट्रेनिंग का, दैट इज योर इंट्रो फ्लाइट. ये आपका वन ऑफ द 2 मेजर इवेंट्स इन योर ट्रेनिंग है. ये जो फ्लाइट है ना आपकी इंट्रो फ्लाइट, आप जिंदगी भर याद रखोगे इसे. क्यों? क्योंकि ये जो है एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें आप पहली बार कॉकपिट में बैठ रहे हो, आपके हाथ में कंट्रोल कॉलम है. ऑल्दो यू आर नॉट द वन फ्लाइंग, योर इंस्ट्रक्टर इज फ्लाइंग, बट स्टिल आपके सामने कॉकपिट का पूरा व्यू है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं, आप फ्लाई कर रहे हो. दिस इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ योर ट्रेनिंग फेज. And first experience actually of your training phase, and trust me on that, you will remember this for your entire life. After this day, slowly you will start your proper flight training, जिसमें कि आपको एक्सरसाइज नंबर 4 से लेके एक्सरसाइज नंबर 11 तक पूरा करना है. This will be called your first phase of flying, जिसके बाद आपका एक टेस्ट होगा. अब इसके अंदर you will start with your ground classes, जहाँ पे आपका इंस्ट्रक्टर जो है वो आपको एक्सरसाइज नंबर 4 से लेके एक्सरसाइज नंबर 11 तक आपकी सारी थ्योरी कंप्लीट करवाएगा. लिफ्ट, ट्रैक, थ्रस्ट, वेट, प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट, ब्ला ब्ला ब्ला. अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू कंसिडर, अ लॉट ऑफ टॉपिक्स यू हैव टू कवर. अब ऐसा नहीं कि सारा का सारा एक ही बार में हो जाएगा. ऐसा नहीं कि आपने सारे ग्राउंड क्लासेस पहले कर लिए उसके बाद यू विल बी स्टार्टिंग द फ्लाइंग. नो, हो सकता है फर्स्ट फ्यू एक्सरसाइज और फर्स्ट 2-3 एक्सरसाइजेस आर डन एंड देन यू स्टार्ट फ्लाइंग. फ्लाइंग जब आप शुरू करोगे तो उसमें यू विल स्टार्ट लर्निंग climbing, descending, climbing turn, descending turn, what kind of bank angle to maintain for which kind of maneuver. For example, suppose you have to go for a climbing turn, you have to maintain a 15-degree bank angle. So it is what it is. ये सब के बीच में ना एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज अ चेकलिस्ट. अब स्टार्टिंग की 3-4 फ्लाइटों में ना वो आप लोग को इतना फोर्स नहीं करेंगे कि आपको चेकलिस्ट याद करनी है. बट उसके बाद भी अगर आपको याद नहीं होगी तो दे विल स्टार्ट ग्रिलिंग यू कि आपको चेकलिस्ट याद क्यों नहीं है. नाउ व्हाट इज अ चेकलिस्ट? चेकलिस्ट इज बेसिकली जब आपको एयरक्राफ्ट स्टार्ट करना है, आपको एयरक्राफ्ट चलाना है, आपको उड़ाना है, तो उन सब चीज़ों से पहले देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू चेक इन द एयरक्राफ्ट एंड दैट इज व्हाट अ चेकलिस्ट इज. तो वो आपको बताना चाहिए. दूसरा, it also depends if you are training at a controlled airfield or an uncontrolled airfield. Like myself, I'm flying at an uncontrolled airfield. So the radio calls pertaining to that in that context will be different. So my radio calls are a lot more easier, and I don't have to ask for permissions. I just have to inform the traffic about the whatever the fuck I'm going to do next. But in a controlled airfield, you have to take permissions for every single thing. Now, depending on your learning capabilities, depending on your absorbing capabilities, you will have learned within a span of, I would say, 7 to 12 hours
all the exercises starting from number 4 to number 11, जिसमें कि आप लोगों ने climbing, descending, climbing turn, descending turn, spiral dive, an interesting maneuver, stalling, again an interesting maneuver, and stalling in landing configuration and clean configuration. And ये सब exercises करने के साथ साथ the checklist, the radio calls, the visual references to reach from your airfield to the general flying area. Oh, wait a second. What the fuck is a general flying area? What the fuck is a general flying area? So, depending on the country, like right now I'm in South Africa. South Africa has an area which is a designated danger area, FAD. अगर आपने TGC के लिए पढ़ा है तो आपको पता होगा FAD क्या है. It's a danger area जो कि इन लोगों ने designate कर रखे हैं all throughout South Africa. जहाँ पे जाके आप अपनी मैन्यूवर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो. वहाँ पे आपको ऑड इवन रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है. एंड आई हैव नो फ्रिकन आइडिया कि ये सेम रूल जो जनरल फ्लाइंग एरिया का है वो अदर कंट्रीज में है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है. आई डोंट नो अबाउट इंडिया, आई डोंट नो अबाउट यूएस, नो कंट्री. आई हैव नो आइडिया अबाउट ऑल द कंट्रीज. आई जस्ट नो अबाउट साउथ अफ्रीका दैट दिस थिंग एग्जिस्ट इन साउथ अफ्रीकन एयर स्पेस. ये 10 से 12 घंटे खत्म होने के बाद टेस्ट फॉर यू जिसको क्लियर करने के बाद यू विल एंटर इनटू द नेक्स्ट फेज, दैट इज अ सर्किट ट्रेनिंग एक्सरसाइज नंबर 12 एंड 13. अब इसके अंदर आप सारी चीजें सर्किट से रिलेटेड सीखोगे एंड द मेन फोकस विल बी लैंडिंग. और आई एम टेलिंग यू लैंडिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. मेरे लिए भी थी. थिंग इज कि आप ये सब चीजें सीखोगे, लैंडिंग वगैरह पे फोकस करोगे एंड आफ्टर कंप्लीटिंग अबाउट आवर नंबर 25 और आवर नंबर 30, ये सब करने के बाद they will again have a test for you, जिसके बाद आपको आपकी second major event of your training flight मिलेगी. that is your solo flight, your first freaking solo flight. इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है ना वो यार. अभी तक ना पता है क्या आदत होती है कि हमारे साथ में कोई बंदा बैठा है, हमारे से कोई गलती हो गई तो वो संभाल लेगा और उसका वेट के साथ उड़ाने का भी हमें एक्सपीरियंस होता है कि यार वी आर ऑलवेज फ्लाइंग विद अ पर्सन सिटिंग राइट नेक्स्ट टू अस एंड वी हैव दैट फीलिंग ऑन द कंट्रोल कॉलम जिसके अंदर उसका वेट का भी इशू आता है. नाउ सडनली एक फ्लाइट ऐसी आई कि आप सोलो फ्लाई कर रहे हो. देयर इज नोबडी ऑन योर राइट सीट, देयर इज नोबडी हेल्पिंग यू आउट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू. एंड वो जो वेट की वजह से वो जो एकदम से लाइट हुआ एयरक्राफ्ट, वो सारी फीलिंग जब एक साथ आती है ना, और जब आप अपना एयरक्राफ्ट लेके उड़ते हो और जब आप डाउनविंड पे पहुंचते हो एंड फाइनली दैट फीलिंग गेट्स इन. मैं जब अपने डाउनविंड में था ना, मैं लिटरली अकेला बैठा हुआ रेडियो कॉल देने के बाद, अपना चेक करने के बाद मैं चिल्ला रहा था एयरक्राफ्ट के अंदर कि मैं फ्लाइंग कर रहा हूँ सोलो. So that kind of experience you're going to go through on your exercise number 14. So your solo flight is called exercise number 14. Congratulations, आपको सोलो मिल गया. एक्सरसाइज नंबर 14 आपकी पूरी हो गई. आपकी जिंदगी में एक बार लॉग बुक में सिर्फ ये एंट्री जाएगी जिसमें लिखा होगा एक्सरसाइज नंबर 14. एनीवे, उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है आपके ट्रेनिंग में, दैट इज कॉल्ड सोलो कंसोल, जिसके अंदर आपको 3 घंटा इंस्ट्रक्टर के साथ फ्लाई करना है, 5 घंटा सोलो फ्लाई करना है. सो हाउ इट गोज इज यू स्टार्ट योर फ्लाइंग विद योर इंस्ट्रक्टर. वो आपके साथ बैठा हुआ है, आपके साथ 2 से 3 सर्किट करेगा, आपकी लैंडिंग चेक करेगा कि आप सेफ लैंडिंग कर रहे हो, अच्छी लैंडिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. एंड आफ्टर दैट ही गेट्स आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड यू गो सोलो. आप 1 या 1.5 घंटा जितना भी आपको मन करे फ्लाई करते हो. उसके बाद यू स्टार्ट द सेम प्रोसेस द नेक्स्ट डे और व्हेनेवर द नेक्स्ट फ्लाइट इज. तो इस तरीके से आप अपना ही सोलो कंसोल का फेज पूरा करते हो. इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अदरवाइज इट्स गोना बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो. मैंने आपको आधा प्रोसेस बता दिया. नाउ द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस व्हाटएवर इज लेफ्ट आई विल बी टेलिंग यू इन द पार्ट 2 व्हिच विल बी कमिंग ऑन वेरी सून. सो स्टे ट्यून एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट डाउन बिलो एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो. बहुत लोगों के काम आएगा, बहुत लोगों को नहीं पता होता है तो बहुत लोगों के काम आएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में. टिल देन, ciao.